All right, so let's start our orientation. Assalamu alaikum and a very warm welcome at the Financial Modeling and Analysis Orientation Program, where we will be covering all the details about financial modeling and analysis. What is financial modeling and analysis, and what are the different career growth opportunities that are available once you complete financial modeling and analysis skills? What are the learning outcomes of this training program? We will also be covering about the exclusive features of this training, such as providing you access to the video recordings. Along with that, we will be discussing about the UXL training platform, and the trainer profile will also be discussed. And towards the end, we will be discussing about the fee investment with a special offer. To ensure that you all attend the demo till the end, please stay with us till the end so that we could offer with you the special offer. Acha, I just got a message from one of our participants that my voice is not clear, or maybe it's not audible. So can you please confirm, everyone, that my voice is audible to you all and you're able to hear me? Can you just please confirm in the chat box? Okay, that's it. So I do read a message from Asharib that my voice is audible, and from Asif as well. So may I please kindly request, we have a participant with the name of Google Pixel 3. Maybe you can check the speaker settings at your end and see if the speakers are working appropriately, because many of the participants are already confirming that the voice is audible. All right. Now let us move on to the introduction of financial modeling and analysis. Before we start, it is very important for us to understand what really financial modeling is all about. Unless we are not clear about the basics of it, unless we are not clear about the concept of it, we will not be able to really understand what we are getting into. तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूँ कि फाइनेंशियल मॉडलिंग इज एन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर. एंड जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस डायनामिक्स काफी ज्यादा चेंज हो रही हैं, और उसमें जो है वो मुख्तलिफ सिनेरियोज बिल्डअप होते हैं हमारे बिजनेस में. तो उनको कैसे इवेल्युएट किया जाए और कैसे उनको जो है वो देखा जाए कि कौन सा सिनेरियो हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में होगा. तो उसके लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम कंसिडरेशन में लेते हैं, और उन पैरामीटर्स के साथ सर्टेन डिसीजंस हैं जो कि हम अपने माइंड में रखते हैं. दीज आर द डिसीजंस दैट वी नीड टू टेक. बेस्ड ऑन दैट वी अप्लाई सर्टेन कैलकुलेशंस, एंड वंस द कैलकुलेशन आर रिसीव्ड वी refresh, we get different outputs. अब यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आप सबको, ताकि आप सबके लिए थोड़ा सा क्लैरिटी आ सके. तो मिसाल के तौर पे, इफ यू आर एक्सपेंडिंग टू अ न्यू बिजनेस, maybe we have here already a lot of entrepreneurs as well. I could hear the profile of Ali Rizvi, who already said that he's working, and along with his working, he has got his entrepreneurial venture as well. Now, Ali Rizvi wants to know that if I'm opening a new business, then what are the parameters that I need to apply? Like, what are the different cost of production that will be occurring? What is the different raw material that I have to purchase for my products? And then what is the point when I will be making a break even? वो कब आ जाएगा? लाइक 2 साल के बाद मैं ब्रेक इवन पे पहुंचूंगा, या 6 महीने पे पहुंचूंगा, या 1 साल में पहुंचूंगा, या 3 साल में पहुंचूंगा? तो वो ब्रेक इवन मेरे पास कब आएगा? कितने मेरी सेल हो जाएगी तो मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को रीच कर सकता हूं? और उसके ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस अप्लाई करेगा, एंड देन ही विल बी रिसीविंग आउटपुट्स. तो उसमें मिसाल के तौर पे अगर अपने घर से ये बिजनेस कर रहे हैं, मैं एक टिपिकल एग्जांपल ले रहा हूं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स. तो उसमें ये होगा कि मे बी अगर वो घर से काम कर रहे हैं तो अभी उनके लिए रेंट तो शायद ना हो, लेकिन उनको जाहिर है परचेजिंग तो करनी पड़ेगी, राइट? डिफरेंट आइटम्स की. फिर उनको परचेज करके उनको जो है पैकेजिंग उसकी करनी होगी, और वो पैकेज करके देन उनकी कुछ डिलीवरी की कॉस्ट होगी. तो उसमें जो है ही विल डेफिनेटली बी इनकरिंग सम कॉस्ट इन पैकेजिंग, डिलीवरी कॉस्ट आ रही होगी. उसके बाद वो एक सर्टेन सेल प्राइस होगी जो कि वो चार्ज कर रहे होंगे अपने कस्टमर्स को. तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि वो क्या क्या कॉस्ट हैं जो कि डायरेक्ट कॉस्ट हैं उनको जो आ रही होंगी, फिर क्या क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, फिर उनके ऊपर ये क्या क्या डिसीजन, मतलब ये चाहते हैं कि एटलीस्ट मेरा 1 साल में
मेरा कम से कम एटलीस्ट 300,000 तो प्रॉफिट हो, मे बी, आई एम जस्ट कोटिंग आउट एन एग्जांपल। तो वो 300,000 को प्रॉफिट रीच करने को इनको क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी अपनी कॉस्ट ऑफ सेल में, क्या क्या चेंजेस उनको करनी पड़ेगी अपनी सेल प्राइस रेवेन्यू में, ताकि वो 300,000 के प्रॉफिट को पहुंच सके। तो वो डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडलिंग की टेक्निक्स होंगी जिसके ऊपर वो अप्लाई करेंगे, ताकि वो फिर कैलकुलेशन करके अपने एक आउटपुट पे पहुंच सके और डिफरेंट सिनेरियोस बिल्डअप कर सके। इसको मजीद क्लैरिटी के लिए हम आगे चल के डिफरेंट चैप्टर प्रीव्यूज भी देखेंगे, जिसमें आपके पास और भी क्लैरिटी आ जाएगी। ऑब्वियसली फाइनेंशियल मॉडलिंग इज नॉट लिमिटेड टू न्यू बिजनेस, इसमें जो है वो डिफरेंट और भी फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि आगे चल के चैप्टर्स में कवर कराए जाएंगे आपको। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी आपको एक क्लैरिटी देने के लिए एक एग्जाम्पल कोट किया गया था। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का फायदा क्या होता है। जैसा कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया कि उन्होंने एक बिजनेस अपना एक खोला है और उसमें डिफरेंट इम्पैक्ट्स पड़ते हैं वेरिएबल्स के। अगर कॉस्ट ऑफ सेल है तो उसमें वो जो डायरेक्ट परचेसिंग करते हैं उसमें क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर उसके ऊपर जो है वो कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सारी डिफरेंट एनालिसिस को वो कैसे डैशबोर्ड्स में देख सकते हैं। So we have to remember that financial modeling is one component, और फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग के साथ जो एनालिसिस है वो दूसरा कंपोनेंट है। और एनालिसिस होती है जब आप अपने पास एक अच्छे से डैशबोर्ड्स बना सकते हैं और उन डैशबोर्ड्स के थ्रू फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है ऑब्वियसली जब हम डैशबोर्ड्स बना रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, तो रिसोर्स अलॉटमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलायबल एंड इजियर हो जाती है। ये आगे चल के हम जब चैप्टर प्रीव्यूज आपसे डिस्कस करेंगे तो उसमें मजीद आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आपका अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग का करियर आप अडॉप्ट करते हैं तो फिर आपको क्या क्या करियर में बेनिफिट्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेबर मार्केट एवोल्यूशन 2020 टू 2025 फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, उसके हिसाब से वी कैन क्लियरली सी कि जो है वो ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट जो है वो नंबर 1 टॉप रैंकिंग स्किल है। तो अगर आप एक ऐसा स्किल सीख रहे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो योर प्रोफेशन इज मच इन डिमांड। और ये रिपोर्ट कोई हमारी बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है, इट्स द रिपोर्ट दैट इज बीन पब्लिश्ड बाय द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ये रिपोर्ट जनरेटेड है और उसमें ये बताया गया है कि जिस करियर की तरफ आप मूव हो रहे हैं उसमें जो है ना डेटा एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, जो कि आपको जो है वो इस कोर्स पे सिखाया जाएगा। बिकॉज ये कोर्स इज अबाउट फाइनेंशियल मॉडलिंग और उसके साथ साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग डिफरेंट जो फाइनेंशियल मॉडल्स है उसकी एनालिसिस कराई जाए। उसके अलावा ऑब्वियसली आपको जो है वो साथ में डेटा मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिसिस के स्किल्स भी सिखाए जाएंगे। तो इससे जो है ना आप तो यहाँ पे ये यकीन दहानी हो रही है कि जो स्किल आपको कवर कराया जा रहा है वो दुनिया भर में डिमांड है उसकी, और ग्लोबल फॉरम्स पे उसकी बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड है। आपकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी जो है वो अगर आप ये स्किल सीख लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लर्निंग आउटकम्स। कैन एनीबडी प्लीज वॉलंटियर टू रीड द लर्निंग आउटकम्स फॉर मी प्लीज? Can anybody volunteer, please? Yep. Okay. Who do we have? Who is volunteering? Can anybody raise their hand to read the learning outcomes for me, please? Assalamu alaikum. It's Kumail Haider. Kumail Haider. Learning outcomes construct dynamic financial models, create visually effective dashboards through Power Query, analyze dashboards to gain business insights. Wonderful. Thank you so much for reading out these learning outcomes for us. Now, what is one of the unique pattern that you see in these learning outcomes? एक पैटर्न है जो कि आपको नजर आ रहा है इस लर्निंग आउटकम में, तो वो क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको? What is something that you see unique in these learning outcomes? My question to you. जी हमारी ऑडियंस जी हक नवाज साहब। Sir, first we have to construct calculations. Then we make the visuals, then we analyze the data from these visuals and calculations. Wonderful, that's great. एक दफा huge round of applause तो करते हैं हक नवाज साहब के लिए because he has really given a great answer. Thank you so much. Thank you, sir. बाकी सब all right, that's great. Okay, all right. So yeah, that's true. जब तक हम पहले जो है वो this whole training is very logical.
and very structured. Structured in a sense कि first you'll be able to construct dynamic financial models. Construct हो जाएंगे तो उसके बाद you will be able to create visually effective dashboards. ज़ाहिर है मॉडल बनेगा तो फिर ही उस मॉडल का डैशबोर्ड बनेगा, और डैशबोर्ड बनने के बाद ही आप एनालाइज कर सकते हैं. तो हमने इस ट्रेनिंग में हर एलिमेंट ऐड किया हुआ है, जैसे फाइनेंशियल मॉडल बनाना, इफेक्टिव डैशबोर्ड बनाना, और उसके बाद बिजनेस इनसाइट्स के लिए एनालाइज करना. तो दीज आर ऑल द डिफरेंट स्किल्स दैट विल बी कवरिंग इनटू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम. नाउ आई विल बी हैंडिंग ओवर टू तनवीर बख्श साहब, who will be giving you a very comprehensive introduction of all the chapters that will be covered in this training program and will help you in getting more clarity. So with a huge round of applause, come on, I should hear the applause. Applause तो कर दें अपने ट्रेनर के लिए. मुझे अभी तक आवाज नहीं सुनाई दे रही कोई भी applause की. ओके, अली रिजवी साहब की आ रही है. तूबा, ओके, दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट. बाकी सब भी अप्लॉज कर दें. ओके, ऑलराइट. इससे देखें अप्लॉज करेंगे तो हमारे लिए मोटिवेशन बढ़ जाएगी, अगर आप चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट हो, राइट? ओके, सो दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच. नाउ may I please hand over to Tanveer Baksh Saab, who will be sharing with you the course outline and giving you a detailed chapter previews of financial modeling and analysis. Over to you, Tanveer Baksh Saab. Thank you, Farhan, and thank you everyone for coming and joining us here today. तो हम start करेंगे. Let's begin with my introduction. My name is Tanveer Baksh, and currently I am working as a GM Finance at Issue Group of Companies, and here at UXL platform, I am serving as a trainer of financial modeling analysis. As far as my educational background is concerned, basically I'm a commerce graduate and I have got master's degree in economics as well. इसके साथ साथ मैंने different diplomas and certificates भी लिए हैं, such as DCS, DIT, Computer Accounting, Accounting and Finance, CDC, etc. But more importantly, I have got 16 years of work experience at different organizations. I started my work from Stock Exchange in 2005 as an assistant research analyst. In 2008, I moved to Commodity Exchange. Currently, it is known as Pakistan Mercantile Exchange. In 2012, I joined Diana Islamic Financial Services. ये Sharia compliant investment company है, जिसको मैंने join किया as a product development manager. Diana Islamic Financial Services के बाद in 2013, I joined Richco Group of Companies as a GM. And since 2013 to till date, I have been engaged and managing different financial activities for this firm. So this is my short introduction. Now let's move on to discuss our course outline. All right. I hope कि आपको screen clear होगी. Please confirm कर दें. Our first chapter will be based upon some basics of modeling and analysis. इसके बाद हम discuss करेंगे sensitivity and scenario analysis. इस तरह से हम different scenarios को incorporate करते हैं business में. Accounting model and data visualization, ये हमारा third topic होगा. इसके बाद financial dashboards को हम cover करेंगे. Data handling with macros, different macros को हमें cover करना है. Power query, data normalization क्यों important है उसको भी discuss करेंगे. Power dashboards, हमें power dashboards create करने हैं. Different financial dashboards हम create करेंगे. और last में जो हमारा last topic है वो है budget forecasting. Let's move on. Chapter previews. So the first chapter है वो है basics of modeling analysis, और इस basic concepts हम start करेंगे, scratch से start करेंगे, लेकिन इसमें हमें कुछ advanced functions को भी cover करना है. Project timeline क्या होता है, different conditions क्या होती हैं, इसको हम discuss करेंगे, और last में हमें एक project design करना है. Start में हमने just different calculations करने हैं, different timeline को discuss करना है, different charts को connect करना है. वेरी फर्स्ट चैप्टर है. इसके बाद हमें कुछ डेटा टूल्स पर गो थ्रू करना है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन है. इस प्रोजेक्ट टाइमलाइन में हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है, और इसमें अगर आप देखें तो एक टाइमलाइन गिवन है. इस टाइमलाइन पर हमारा डिफरेंट टास्क परफॉर्म होने हैं. इस टास्क को हम सिंपली लिंक करेंगे एक डायनेमिक चार्ट से, और इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें हम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को विजुलाइज नहीं कर रहे हैं,
बल्कि हम डे 1 से डे लास्ट तक की परफॉर्मेंस को विजुलाइज करेंगे, जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस। इसमें हमारे डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल कैलकुलेटर कौन से हैं, किस तरह से हम गोल सीक और सॉल्वर को यूज करते हैं, एक डायनेमिक एमोर्टाइजेशन टेबल को हमें कनेक्ट करना है। अगर हम किसी भी एसेट को फाइनेंस कर रहे हैं एज अ फाइनेंसर, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, पेमेंट क्या होगा, डिफरेंट फाइनेंशियल फंक्शंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास सॉल्वर है, एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। डाटा टेबल है, सेंसिटिविटी को एनालाइज करेंगे, डिफरेंट सेंसिटिविटी एनालिसिस को कवर करना है विद द हेल्प ऑफ डाटा टेबल। और इसके साथ साथ हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट है, हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट है, और हमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए हम डिफरेंट डाटा टेबल और गोल सीक को यूज करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, और इन सिनेरियोज को हमें डिफरेंट एनालिसिस में यूज करना है। तो फर्स्ट एनालिसिस क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो एनालिसिस। और उसमें जो फर्स्ट सिनेरियो होगा वो बेस केस सिनेरियो हम कहेंगे उसको। बेस केस सिनेरियो एक्चुअली हमें फोरकास्ट करना है 3 फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद उसको डिफरेंट सिनेरियो पर विजुलाइज करना है। तो जो हम एक्चुअली बिजनेस फोरकास्ट करेंगे उसके डिफरेंट सिनेरियोज क्या होंगे, उसको हमें यहाँ पर कवर करना है। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होगा, अकाउंटिंग मॉडल एंड डेटा विजुलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, और इसके बाद हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। पहले हमें बेसिक कैलकुलेशंस को लिंक करना है अपने डेटा सेट से, और उसके बाद हम एक डिफरेंट डैशबोर्ड में डिफरेंट टर्नओवर्स को, डिफरेंट एफिशिएंसीज को रिपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट चार्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये कंप्लीटली डायनेमिक होगा। इसमें टॉप 5 रिसीवेबल्स, पेबल्स, टॉप 5 प्रॉफिटेबल आइटम्स कौन से हैं, और इसी तरह से हम डिफरेंट टर्नओवर्स को फाइंड आउट करेंगे ऑन द मंथली बेसिस पर। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स होंगे, और उन डेटा सेट्स के साथ हमें डिफरेंट रिपोर्ट्स को कनेक्ट करना है। इंपॉर्टेंट है डेटर एंड क्रेडिटर एनालिसिस। जो मैच्योरिटी स्टेटमेंट्स हैं उसको हमें एक्चुअली लिंक करना है अपने डेटा सेट से, और हमें रिसीवर्स और पेबल्स को डिफरेंट मैच्योरिटीज के ऊपर टारगेट करना है। तो यहाँ पर रिसीवल और पेबल मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को हमें लिंक करना है अपने डेटा सेट के साथ। इसके बाद हमारे पास फोर्थ चैप्टर होगा, फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स। इसमें हम हमारे डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे। फर्स्ट हमें टेबल इंसर्ट करना है, एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है, और इसके साथ साथ हमारे सेकंड एग्जांपल में कॉम्बो चार्ट यूज करेंगे, टाइमलाइन और स्पार्क लाइंस को डिस्कस करेंगे। और थर्ड टॉपिक जो हमारे पास होगा वो होगा 3D मैप का। तो फर्स्ट टॉपिक में हमारे पास डिफरेंट स्लाइसेस को कनेक्ट करना है अपने डेटा सेट के साथ, और डिफरेंट परफॉर्मेंसेस को इवेल्युएट करना है। इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल होगा, और उसमें हमें डिफरेंट कैलकुलेशंस करने हैं, डिफरेंट समरीज क्रिएट करेंगे, और हमें टाइमलाइन और स्पार्क लाइन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा, जिसमें हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे, हमें लोकेशन टारगेट्स करने हैं, डिफरेंट लोकेशंस वर्ल्ड मैप पे या हम पाकिस्तान के मैप के ऊपर डिफरेंट लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, सेल्स क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, और इसके साथ साथ एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स हैं किन एरियाज में है उसको हमें एड्रेस करना है। तो हम फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 हमारे पास मैक्रोस का होगा, डाटा हैंडलिंग विद मैक्रोस, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मैक्रोस होंगे, एग्जांपल मैक्रोस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो फर्स्ट हमें एक सेल रिपोर्ट को अगर डायनेमिक करना है तो हम मैक्रोस से किस तरह से उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें किसी भी डेटाबेस में डिफरेंट रिकॉर्ड्स को स्टोर करना हो और उसको लॉक करना हो तो हम किस तरह से उसको सिक्योर कर सकते हैं। और डिफरेंट डाटा हैंडलिंग के लिए हम डिफरेंट इनपुट्स को कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन से, और उसमें डिफरेंट कंडीशन एंड चेक्स लगा सकते हैं। ये मैक्रोस में हम कवर करेंगे। बल्क पोस्टिंग, अगर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और उसको एक साथ डेटाबेस में प्लेस करना है, इसके लिए भी हम मैक्रो यूज करेंगे। और डिफरेंट जो हमारे पास डेटाबेसेस हैं उससे अगर रिकॉर्ड को आपको फेच करना है, रिट्रीव करना है, उसके लिए भी हम मैक्रोस का यूज करेंगे। एक डिटेल टॉपिक है, इसको कवर करना है चैप्टर 5 में। ऑलराइट,
इसके बाद हमारे पास चैप्टर 6 होगा, पावर क्वेरी एंड डेटा नॉर्मलाइजेशन। डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जब हम डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट डेटाबेसेस से, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से डाटा को इंपोर्ट करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स अगर होते हैं, उनको हमें एक्चुअली रेक्टिफाई करना होता है। पावर क्वेरी क्या होती है? किस तरह से हम अपने कंप्लीट सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फर्स्ट, और उसके बाद अप्लाई करेंगे पावर क्वेरी। और इसमें हमारे पास डायनेमिक पाथ का एक कॉन्सेप्ट है कि हम डिफरेंट यूजर से इनपुट्स कलेक्ट करें, डिफरेंट एरियाज से कलेक्ट करें, और डिफरेंट कंप्यूटर से हमें एक्चुअली इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे। उसको हमें सेंट्रलाइज करना है डायनेमिक कनेक्शंस के जरिए, और उस पूरे सिस्टम को जिसमें मल्टीपल यूजर्स होंगे जो हमें इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, और उनको हमें सेंट्रलाइज डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो पावर क्वेरी यूज करेंगे और अपने डायनेमिक पाथ क्वेरी को डिजाइन करेंगे। और इसके बाद हमारे पास पावर डैशबोर्ड्स होंगे। हम अपने फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स पावर डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा पावर क्वेरी का, यहाँ पर अप्लाई करेंगे और एक कंप्लीट फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाएंगे। मल्टीपल ईयर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, मल्टी ईयर्स डाटा हो सकता है। और जस्ट इसका जो ऑटोमेशन है वो इस तरह का होगा कि आपने एक फोल्डर से डाटा को कनेक्ट करना है, और यहाँ पर सिंपली हमने इस फोल्डर को, इस फाइल को प्लेस किया इस फोल्डर में, और जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस एरिया में वो एडिशनल ब्रांच शो होगा और उसका पूरा डाटा सिंक होगा। तो एक्चुअली हमें जस्ट क्या करना है, एक फोल्डर से अपने डाटा को लिंक करना है, और उसमें जितने भी फाइल्स आप प्लेस करते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली वो लिंक होगा हमारे पावर डैशबोर्ड से। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और डिफरेंट रिलेशनशिप्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। डाटा रिलेशनशिप्स को किस तरह से आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमें फाइनल रिपोर्ट्स में उसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बजट फोरकास्टिंग। बजट फोरकास्टिंग में हमारे पास एक्चुअल डाटा होगा, ये हमारा कंपनी का इंटरनल डाटा होगा, और उसको हमें कंपेयर करना है लास्ट ईयर के बजटेड डाटा से। फर्स्ट हमें वेरिएंस एनालिसिस करना है, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट करना है। फोरकास्टिंग में हमारे पास सीजनैलिटी फोरकास्ट होगा और लीनियर फोरकास्ट होगा। हम इन दोनों अप्रोचेस से फोरकास्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें ये समझना है कि हमारा डेटाबेस किस फॉर्म में है, और जो हमारे कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट है वो तमाम लाइन आइटम्स हमें रिक्वायर्ड है मंथली बेसिस पर, और बजटेड डाटा जो हमारे पास होगा वो भी मंथली बेसिस पर होगा। हमने क्या करना है, जस्ट डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स को वन बाय वन हम इसमें लिंक कर सकते हैं और डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको फोरकास्ट कर सकते हैं, सीजनैलिटी फोरकास्ट होगा, वेरिएंस एनालिसिस होगा, और इसके साथ साथ हमें एक्चुअली डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स भी इन्वॉल्व करना है। एक्चुअली जब बजट फोरकास्टिंग हम करेंगे तो हमें अपने रिसोर्स एलोकेशन को समझना है, किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, चैप्टर 8। इसके बाद कुछ बोनस चैप्टर्स होंगे जो हमारा फंडामेंटल लेवल है, इसमें कुछ बोनस चैप्टर्स भी इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट चैप्टर लोकेशन टारगेट्स है, और इसमें हम स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, मैप लोकेशंस को एक्चुअली हाईलाइट करेंगे। जो एफिशिएंसीज हैं, परफॉर्मेंस है, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। डिफरेंट लोकेशंस में जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कर सकते हैं। सिंपल चार्ट्स हैं, ये एक बोनस है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है जो आपको अवेलेबल होगा। इसके बाद सेकंड जो आपके पास बोनस चैप्टर है वो है इन्वेंट्री मॉडल। काफी डायनेमिक मॉडल है। अगर आप वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, डिफरेंट इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं, तो आप इस मॉडल में डिफरेंट लोकेशन से उस इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं और उसका एक कंप्लीट डिस्पैच प्रोग्राम फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जस्ट क्या किया, उस डेटाबेसेस को लिंक किया और डिफरेंट लोकेशंस को हाईलाइट किया। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर इन्वेंट्री अवेलेबल है, जो इन्वेंट्री हमने यहाँ पर सिलेक्ट की, और उसके बाद जब हम डिस्पैच प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो इन्वेंट्री इस एरिया से हमें एक्चुअली लोड करना है। वो पूरा लोडिंग प्रोग्राम यहाँ पर आपको शो होगा। डिफरेंट डेटाबेसेस को हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोनस चैप्टर है, और इसका थर्ड बोनस चैप्टर आपको मिलेगा इंटरव्यू मॉडल। एचआर मैनेजमेंट क्वेरीज हैं, तो आप सिंपली जो हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम है इसमें उसको इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी का टेस्ट लेना है तो टेस्ट लेने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, एक इंक्वायरी फॉर्म फिल अप कर सकते हैं जिसमें नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस आपने फिल किया, और इसके बाद
उन क्वेश्चंस को यहाँ पर प्लेस कर सकता है। अब ये क्वेश्चंस क्या है, सिंपल रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, पिक्चर लुकअप के साथ यहाँ पर पिक्चर भी आएगी, या आप डिफरेंट ऑप्शंस रख सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है, करेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर, और इसके बाद उसका प्रॉपर डेफिनेशन। ये सारा इंक्लूडेड होगा कि आप उस डेटाबेस में उसके स्कोर या मार्क्स, उसकी जितना टाइम कंज्यूम किया, टाइम कंजम्पशन के हिसाब से भी स्टोर कर सकता है। तो एक डायनेमिक मॉडल है, ये भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये भी आपको एज अ बोनस मिलेगा। तो हमारे पास 3 बोनस चैप्टर्स हैं और 8 हमारे पास जो लाइव क्लासेस में कवर किए जाएंगे। तो टोटल ये 11 चैप्टर्स यहाँ पर कवर हो गए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्दर के हाउ द प्रोग्राम विल वर्क। इसके लिए मैं फरहान शाहिद काजी को इनवाइट करूंगा, काइंडली इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करें। ओवर टू यू फरहान भाई। All right, so that was a demonstration of all the chapters that we'll be covering, and obviously in the detailed training program, they will, in the training program that is commencing from next week, it will be covered in detail about the tools and different techniques that you need to learn and apply for financial modeling. ये मेरे पास एक अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो है वो what are the prerequisites of this course, कि मैं जो है वो मतलब व्हाट इज द मिनिमम लेवल जो मुझे आनी चाहिए टू साइन अप फॉर दिस कोर्स। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि प्री रेक्विजिट ऑफ दिस कोर्स इज कि एटलीस्ट आपके पास अकाउंटिंग का बैकग्राउंड हो, फाइनेंस की नॉलेज हो, आप फाइनेंस ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन परसू कर रहे हो एटलीस्ट। क्योंकि देखें हम यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग को कवर कर रहे हैं। अगर हम इसमें अकाउंटिंग की ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे, भाई P&L क्या है, बैलेंस शीट क्या है, और जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, तो वो तो फिर हमारा स्कोप अलग हो जाएगा, वो हमारा स्कोप हो जाएगा अकाउंटिंग की तरफ। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट कुछ अकाउंटिंग की नॉलेज और अकाउंटिंग का बैकग्राउंड आपका होगा, ताकि फिर हम उस पर बिल्डअप करें। मतलब आप अकाउंटिंग की नॉलेज है, उसके ऊपर हम आपको बिल्डअप करके फर्दर नेक्स्ट लेवल पे फाइनेंशियल मॉडलिंग पे लेकर जाएं। और फिर इसके अलावा एक ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हमें एक्सेल कितनी लेवल का आना चाहिए, ताकि हम ये देखें MS एक्सेल की ट्रेनिंग नहीं है, ये तो फाइनेंशियल मॉडलिंग की ट्रेनिंग है, और उस फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम MS एक्सेल एज अ टूल यूज करते हैं। तो आपके पास अगर ओरिएंटेशन होगी MS एक्सेल की ऑलरेडी, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बताने का मकसद ये कि स्कोप ऑफ द ट्रेनिंग, स्कोप वो बड़ा क्लियर रखना है। स्कोप क्या है? नंबर 1 फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए, अकाउंटिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। नंबर 2 एक्सेल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कुछ बेसिक इंटरफेस का आपके पास एक्सपीरियंस हो, ताकि फिर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग अच्छी तरीके से सीख सके। मजीद अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आई एम अवेलेबल, फरहान शाहिद काजी, मैं अपने नंबर आपसे शेयर कर दूंगा। तो मैं आपको अगर कोई भी काउंसलिंग या आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए मैं आपको आई विल बी एबल टू हेल्प यू एंड असिस्ट यू। अच्छा, यहाँ पे ये बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम ऑफर कर रहे हैं, इस पे हम आपको एक स्पेशल ऑफर भी शेयर करेंगे। फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना नेम, ईमेल आईडी और सेल नंबर, ये जो है वो हमारी सपोर्ट टीम के साथ जरूर शेयर करें। यहाँ पे हमारे पास टीम मेंबर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ओके, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ हाउ द प्रोग्राम विल रियली वर्क. Now, before I confirm about how the program will really work, I wanted to take your quick feedback as well. कि अब तक का जो आपको ओरिएंटेशन प्रोवाइड किया चैप्टर्स का, तो व्हाट्स योर फीडबैक, आपको कैसा लगा? जी आप शेयर करना चाहेंगे प्लीज? How was your what's your feeling about it? What do you think about the different chapters that you've seen? Okay, messages में हमारे पास आ रहा है। Okay, ये डिटेल्स आ रही हैं। Okay, great, excellent. Okay. उसके अलावा व्हाट्स योर फीडबैक, लाइक आई वांटेड टू हियर योर फीडबैक के व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब तक जो आपने चीजें सीखी? It's good to start with a direction. Okay, that's great. Thank you so much, Ali Rizvi, for confirming. That's great. Okay, great. Okay, so let's now discuss about the program, कि किस तरीके से program will work. First of all, ये जो है वो live on campus physical trainings provide की जाएंगी और ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे वाया जूम। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑन कैंपस भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। दोनों ऑप्शन से आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी ये ऑल टुगेदर, और
आपका जो पहला सेशन है वो 12 मार्च को होगा between 2 p.m. to 5 p.m. ठीक है. Now the timings may vary in coming month due to Ramzan, but हमारा टाइमिंग यही रहेगा 2 p.m. to 5 p.m. To start with on 12 March. अच्छा, इसके साथ साथ प्रैक्टिस शीट्स एंड असाइनमेंट्स आपको शेयर कर दी जाएंगी इन एडवांस, और LMS पोर्टल का एक्सेस भी शेयर कर दिया जाएगा रिकॉर्डिंग्स का, और आपके पास यहाँ पे एक डेट कैलेंडर भी शेयर कर दिया गया है कि मिसाल के तौर पे हमारा जो पहला सेशन है वो है 12 मार्च को. तो जब पहला सेशन 12 मार्च को होगा तो उसकी प्रैक्टिस फाइल आपको 11 मार्च को मिल जाएगी, और 13 मार्च को आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. ठीक है. तो ये एक टिपिकल सा एक ट्रेनिंग कैलेंडर है जो कि अभी शेयर किया गया है आपसे, ताकि आप जो है वो बेहतर तरीके से क्लैरिटी ले सकें. अच्छा, ट्रेनिंग की टोटल ड्यूरेशन 24 आवर्स है, 12 आवर्स इन मंथ 1 एंड 12 आवर्स इन मंथ 2. अच्छा, इसके साथ साथ LMS पोर्टल का भी मैंने कहा डिजाइन आपको दिखा दूं कि ये जो है वो LMS पोर्टल विल लुक लाइक दिस, जिसमें आप जो अपनी चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं. अच्छा, अब जो है वो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म. UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी. फिनटेक का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय फिनटेक? कैन एनीबॉडी शेयर योर आइडिया प्लीज? फिनटेक का क्या मतलब है? Financial technology. Excellent, that's great. Thank you so much for confirming. Wonderful, that's great. मेरी तरफ से एटलीस्ट आप जो है वो ये एक recognition ले लें. आपको जो है वो रिएक्शन भी दे देता हूँ एक क्लैपिंग का. Okay, wonderful, that's great. Thank you. Okay, so we are registered with STEFTA, Sin Technical Education Vocational Training Authority, and we are affiliated with Trade Testing Board, Government of Sin, which means को आपको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट इंडोर्स होके मिलेंगे. इसके साथ साथ वी आर KCCI मेंबर, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर हैं हम, और हम एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर है विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का. अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द ट्रेनर प्रोफाइल. My name is Farhan Shahid Qazi. I am an ACCA member and I hold BSc Applied Accounting degree from from Oxford Brookes University, and I also hold the trainer certificate from ATT USA. इसके साथ साथ I am the convener of Skills Development Committee in FPCCI, and most importantly, I've got an experience of working in multinationals such as IBM, International Business Machines, as business analyst, and I've got over 10 years of experience while working internationally in London and in Dubai. अच्छा, इसके साथ साथ we have our trainers profile as well. तनवीर बख्श साहब जो कि लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस. ये और ये आपको जो है वो गाइड कर रहे होंगे टुवर्ड्स द फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की टेक्निक्स. तनवीर बख्श साहब इज अ मास्टर्स डिग्री होल्डर in economics from Karachi University, and he is also the general manager at Richco Group, which means कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता फाइनेंशियल मॉडलिंग का, इक्विटी मार्केट्स में काम करने का, कमोडिटीज की मार्केट में काम करने का, तब तक फाइनेंशियल मॉडलिंग कैन नॉट बी अ वेरी प्रैक्टिकल स्किल जो कि एक ट्रेनर पढ़ा सकता है. अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फुली इक्विप्ड विद द एक्सपीरियंस ऑफ 16 years plus working in industry, and most importantly he works on all the real life case studies. तो उसमें ये होता है कि आपको जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही होती है ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग. अच्छा, ये हमारे पास कुछ फर्दर रिकमेंडेशंस हैं, फीडबैक्स हैं. may I please request one of our participants to please volunteer to read this one of our recommendation? जी, this time may I please request Ali Shuaib. Okay, fine. जी, Ali Shuaib sir. UXL has enhanced my soft skills, which are highly required in any field now. After completing two short courses, alhamdulillah, I got significant growth in my salary and profession. I always found them supportive, cooperative, responsive, and resolving the issues. Sir Farhan and his team is available 24/7 for any assistance. I'm really grateful for their timely support I need from them. Indeed, you people are doing great job. Alhamdulillah. That's the second feedback. Can you read this also, and then we'll move on. Highly recommend this institute. Being a learner and developing my skills from this institute, I'm 100% satisfied from trainers providing more knowledge what I expect. I will do another course also after CFMA program.
Excellent. That's great. Thank you so much once again for reading out these testimonials, Ali Shoaib sir. I'm humbly thankful to you. Thank you. Okay, so the point is कि ये सारे सोशल मीडिया पे जो है वो हमारे फीडबैक्स हैं, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, आप कहीं भी जाएंगे तो ये वो फीडबैक्स है जो कि डायरेक्टली आपको सोशल मीडिया पे हमारे नजर आएंगे। और इसके अलावा और भी फर्दर फीडबैक्स हैं, जैसे कि ये सबीला अली हैं, ये भी हमारी अलुमनाई का हिस्सा रह चुकी हैं, अब्दुल सबूर है जो कि हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा रह चुके हैं। मकसद कहने का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम सर्विसेज दे रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग का और लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें और आपको जो है वो आपकी स्किल्स में इजाफा हो। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से जब आप भी हमारे साथ एसोसिएट होंगे तो आपको भी यही बेहतर से बेहतर हाई क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और आपको जो है वो कोशिश की जाएगी कि आपकी स्किल्स में अपग्रेडेशन हो इंशाल्लाह ताला फर्दर। ओके, तो जो है वो अब हम मूव करते हैं फर्दर टुवर्ड्स द स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर हो जाए या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, इसको छोड़ दूं? जी जनाब। सर बस इसी का इंतजार था, पहले ये बता दें। ये जो मुझे आता है ना कि सर मुझे इसी चीज का इंतजार था, तो ये जो है ना बड़ा जी। और बता दें हमारे जी पार्टिसिपेंट्स, स्पेशल ऑफर हो जाए या मैं आगे बढ़ जाऊं? देखिए मुझे रिस्पांस नहीं आया तो मैं छोड़ दूंगा इस स्लाइड को, आगे बढ़। चले जी, ओके जी। अब जो ये ओके, अब मुझे काफी ज्यादा मैसेज आ रहे हैं लेकिन इतना मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, अभी और भी मैसेज आने चाहिए जी, मुझे पता तो चले सब जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं। और भी मुझे कम से कम 5 और मैसेजेस चाहिए कम से कम स्पेशल ऑफर के, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा वरना इधर ही रुक जाऊंगा। अब आपकी मर्जी है। चलिए जी, जाग रहे हैं। ओके जी, यस ऑफर। ओके, हैदर खालिद साहब का भी रिप्लाई आ गया है। गूगल पिक्सल 3 आप अपना नाम को रीनेम तो करें, फिर आपको स्पेशल ऑफर मिलेगी, वरना स्पेशल ऑफर नहीं मिलने वाली। गूगल पिक्सल 3 आप अपना नाम तो रीनेम करें प्लीज। ओके, तो अब मेरे ख्याल से इतना रिस्पांस मेरे पास आ गया है कि मैं स्पेशल ऑफर के लिए आगे बढ़ सकता हूं अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। चले जी, तो अब आ गया हमारे पास टाइम स्पेशल ऑफर का। सबसे पहले आपको देखें हम यहाँ पे बेनिफिट्स देना चाह रहे हैं। वी वांट टू मेक योर ट्रेनिंग मोर सक्सेसफुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी शेयरिंग विद यू द 24 आवर्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच, ठीक है। और इसमें जो है हम आपको कुछ बोनसेस भी दे रहे हैं। लोकेशन टारगेट्स का आपने देखा, चैप्टर इंटरव्यू मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल, उसके अलावा ऑनलाइन एलएमएस रिकॉर्डिंग एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीलांसिंग का सेशन भी ऑफर कर रहे हैं। ये एक नया एडिशन है जो पहले हमारे पास होता था लेकिन बीच में हमने जो है वो इसको स्टॉप कर दिया था, बट नाउ योर बैच विल बी हैविंग अ कॉम्प्लीमेंट्री के भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग में फ्रीलांसिंग को कैसे हम लेकर आ सकते हैं। और मैं आपके पास स्पेशल एक गेस्ट स्पीकर सेशन कराऊंगा जो कि ऑलरेडी फ्रीलांसिंग से पैसे कमा रहा है फाइनेंशियल मॉडलिंग करके, तो उसको जो है ना डायरेक्ट केस स्टडी शेयर करूंगा ताकि आप अगर अपनी जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ आप अगर एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहते हैं तो आपके पास वो फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल कैसे बनती है, फ्रीलांसिंग में कितना चार्ज करना चाहिए, फ्रीलांसिंग में क्या क्या आपको सपोर्ट देनी चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह ताला एक सेशन होगा हमारा फ्रीलांसिंग का, वो भी कवर करेंगे ताकि आप बेहतर से बेहतर अपनी इस ट्रेनिंग की जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इसमें से ऑलरेडी कमाना शुरू कर दें। हमारा मकसद ये कि आप पैसे कमाएं इस ट्रेनिंग से, अपने स्किल्स को अपग्रेड करें और अच्छे अच्छे पैसे कमाएं और प्रमोशंस दें। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो इसके साथ साथ एक फाइनल जो बोनस 7 हम दे रहे हैं यहाँ पे कि लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस, विच मीन्स के ट्रेनिंग 2 मंथ्स की है लेकिन 2 मंथ्स के बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ऑन रहेगा ताकि हम आपके साथ अपनी एसोसिएशन रखें। आपको जो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग में या एमएस एक्सेल में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो आप इश्यूज अपने शेयर कर सकते हैं और हम उसकी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो अब जो है हम स्पेशल ऑफर अब शेयर कर रहे हैं विद यू ऑल अपॉन ऑल ऑफ योर ऑल रिक्वेस्ट। हमारी ये इन्वेस्टमेंट थी 7,800 जो कि अगेन ये भी अमाउंट बहुत ही कम है, बहुत ही आपके लिए जो है वो डिस्काउंटेड ऑफर था, बट अब इसको हमने फॉर यू टुडे ओनली जो हमारा डेमो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए हमने 7,500 पर मंथ के बेसिस पे रखा हुआ है फॉर यू एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। और जो हमारे पास लमसम में पेमेंट कर देगा विच मीन्स के 2 महीनों की ट्रेनिंग का पैसे एडवांस में दे देगा तो उसके लिए 14,500 लमसम फी में, एंड दिस इज इंक्लूडिंग ऑफ
सिंध सेल्स टैक्स, बिकॉज ऑब्वियसली हम वी आर रजिस्टर्ड विद SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड, तो उसके जो टैक्सेस हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। तो पर मंथ 7,500 और अगर लमसम करें तो 14,500। बिलीव यू मी, इतने में नॉर्मल MS एक्सेल की ट्रेनिंग अगर आप करने जाएंगे ना, तो MS एक्सेल की ट्रेनिंग नॉर्मल वाली भी एक्सपेंसिव होगी। यहाँ पे तो हम आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखा रहे हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये स्पेशलाइज स्किल आपको ऑलरेडी बहुत ही एक जो है वो, ताकि हमारा मकसद ये है कि बेहतर से बेहतर बहुत सारे लोग इसमें से, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें से फायदा उठाएं, इस स्किल से सीखें और पैसे कमाएं, अपनी प्रमोशंस में, सैलरी में इजाफा करें। आपको आप पीछे आपको रिकमेंडेशन भी शेयर की, उसमें देखा उन्होंने ये अपना फेसबुक पे मेंशन किया कि मेरी सैलरी में इजाफा हुआ है आफ्टर टेकिंग दिस ट्रेनिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि आप भी जो है वो ये इससे फायदा उठाएं। ऑब्वियसली जो आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी फी एक्स्ट्रा होगी 1,000 रुपीज जो अप्लाई होंगे, जो कि हम गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड को देते हैं फॉर योर सर्टिफिकेट, वो एडिशनल होगा इससे। और ये ऑफर महदूद मुद्दत तक है। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला कि ये मेमन, तो मेमन का ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि वो ऑफर जो है ना पूरा वक्त चलती रहे, कुछ स्पेशल ऑफर में कुछ थोड़ा सा हरियप तो होना चाहिए, क्या ख्याल है? तो जो है ना ये 7 मार्च तक बस ये ऑफर है आपके लिए, और उसके बाद ये ऑफर बैक टू 7,800 और 15,000 चली जाएगी। अगर आपको इस ऑफर का फायदा उठाना है तो अभी के अभी अपने आप को रजिस्टर कराएं फॉर दिस ट्रेनिंग और इससे फायदा उठाएं और अपने स्किल्स को इजाफा करें। मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आपसे जो है वो शेयर कर दूंगा, अपने टीम मेंबर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे एडमिशन फॉर्म का लिंक शेयर कर दें। आप जो है ऑनलाइन ट्रांसफर, डायरेक्ट डिपॉजिट, इजी पैसा, जैज कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको जो है वो ये फॉर्म का लिंक आपसे शेयर कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। काइंडली अपने आप को रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा ताकि जो है हम आपको ऑफर शेयर कर सकें। रजिस्ट्रेशन लिंक आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है ताकि जो है वो फिर आपको फर्दर गाइडेंस मिल सके। तो मैं आपसे फिर से एक दफा जो है वो रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आप जो है आपके पास डिटेल्स आ जाएं ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से हम आपको सपोर्ट कर सकें। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कांटेक्ट डिटेल्स भी आपसे शेयर कर दी गई हैं, हमें कांटेक्ट करें एंड वील बी देयर टू गाइड यू एंड सपोर्ट यू इंशाल्लाह।